Pakistan is positioning itself as the head mediator. Very interesting. Perhaps Pakistan is getting ready to enter the chat, Alex. Pakistan Chaudhry bana baitha hai and India is not even in that building. Sushant understand foreign policy very well. Pakistan Chaudhry bana baitha hai, international mediation kara raha hai Asim Munir, and India is not even in that building. Breaking news that is coming in, where US President Donald Trump has shared a message from Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif on his Truth Social account, highlighting Islamabad's offer to mediate talks. पाकिस्तान ने भी कैसे तलवार की धार पर चलकर ये बैलेंस बनाया आशुतोष की हम भी देख रहे हैं, कैसे वो अमेरिका को भी खुश रखते हैं, फिर ईरान पर हुए हमले की बस एक बयान जारी करके निंदा भी कर देते हैं। वो सबने देखा है कि किस तरह उनको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। खाड़ी देशों के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, और जैसे मैंने 4-5 कारण बताए, ये सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, उसकी ज्योग्राफी है, उसकी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उसको जी मानक ग्लोबल डिप्लोमेसी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। Vishwaguru, that's what he calls himself, but now he should hand that title over to Shehbaz Sharif. Reports suggest Pakistan is now helping diffuse tensions between America and Iran. Yes, Pakistan, now playing peacemaker on the global stage. This isn't just a diplomatic setback, it's a direct rebuff to India. And the blame lies squarely with our self-styled Vishwaguru, who once claimed he could stop wars. Because let's be honest, this didn't happen overnight. Despite our undeniable military success in Operation Sindoor, Pakistan has outplayed us diplomatically. Donald Trump warmly embraces Shehbaz Sharif, the same man whose rhetoric fueled tensions before the Pahalgam terror attack. And it doesn't stop there. Pakistan's Army Chief Asim Munir hosted at the White House not once but twice. But Modi's weak foreign policy hasn't helped India either. His poorly timed Israel visit just days before US-Israel strikes on Iran only made things worse. The reality today is Modi's so-called Vishwaguru is exposed, the illusion completely shattered. And who pays the price? The citizens, for one man's obsession with fake image over substance. Pakistan is positioning itself as the lead mediator, trying to broker an end to the US's and Israel's war against Iran, using its military strongman's ties to Tehran and warm relationship with Donald Trump. Army Chief Asim Munir spoke with Trump on Sunday, according to two people briefed on the call, while Pakistani Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif had talks with Iranian President Masoud Pezeshkian on Monday. The conversation between the Pakistani and Iranian leaders came at around the same time as Trump announced that he was delaying his threat to obliterate Iran's power plants after very good and productive conversations with Tehran to end the war. It was not clear if Pakistan's mediation push and Trump's post on Truth social media platform, which caused oil prices to fall sharply, were related. कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है, ये भरोसा दिलाया है कि इजराइल ने अगर ईरान पर परमाणु अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल पर दागेगा परमाणु बम। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने ईरान को इस हद तक समर्थन दे दिया कि अगर इजराइल परमाणु बम दागेगा तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे। क्या पाकिस्तान ये कर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? Good question. Thanks. Good question. If you'd like me to advance for time, I can. I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Pakistan has become a vital conduit for this messaging. Its all-powerful military chief, Field Marshal Asim Munir, has worked the phones with President Trump, while Prime Minister Shehbaz Sharif spoke to Iran's president, promising Islamabad's help and constructive role in advancing peace in the region. Iran's foreign ministry spokesperson responded, saying messages has been received from some friendly countries indicating a US request for negotiations at ending the war.
The global south is a reality. China, Russia and Pakistan are now more closer than ever. I feel so sorry to say this, but Pakistan is faring much better diplomatically than India, which has never happened in the past 70 years. I believe we are on our way down. मतलब सोचिए कि असीम मुनीर युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहाँ हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नदारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही खी करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। यूपीए के वक्त हमारी अचीवमेंट ये थी कि हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। बात तो सही है। मोदी जी की अचीवमेंट क्या है? बैगन। मोदी जी की अचीवमेंट ये है कि जिस कमरे में मोदी जी को होना चाहिए था, भारत को होना चाहिए था, उस कमरे को छोड़िए, उस घर के गेट से भी बाहर हैं हम। वहां पाकिस्तान बैठ के चौधरी बना हुआ है और समझौते करा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं। हम एक एम्बिशन रखते थे, हमारी महत्वाकांक्षा थी और सही महत्वाकांक्षा थी कि हम चीन को इस पूरे रीजन में, चीन से हम आगे बढ़ जाएं। मोदी जी ने ये हालत कर दी कि हम पाकिस्तान के भी पीछे हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोई आज नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गंभीरता से नहीं लेता। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। वाह मोदी जी, वाह वाह। पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं करा ईरान ने। आपने कभी सोचा है पाकिस्तान इट्स अ नेबरिंग कंट्री, तो अफगान को तो मारना या उनके ऊपर हमला करना कोई सर पैर वाली बात है। लेकिन पूरे नेबर्स और नियर नेबर्स पे ईरान ने कहर मचा रखा है। इराक से लेकर सऊदी से लेकर जो नियर नेबर्स भी, सऊदी से नियर नेबर, उसके ऊपर बम मारना है, जॉर्डन के ऊपर बम मारना है, तुर्की के ऊपर, हर जगह, कतर, बहरीन, आप ओमान, किसी को नहीं छोड़ा आपने, UAE किसी को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया दोस्तों? आप मान के चलिए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आप मान के चलिए। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान का हाथ है और दुनिया भर पे बम मार रहा है ईरान, पाकिस्तान कहता है कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम भाई है। मुस्लिम भाई तो वो UAE का भी है भाई, अरब भी तो मुसलमान है, उन पर तो बम मार रहा है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं मार रहा है? इसका एक कारण हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके तेल भी जा रहा है और वहां से रॉकेट मिसाइल और ड्रोन भी जा रहे हैं। क्योंकि लगातार दर लगातार लड़ने की क्षमता जो है, ये जो लड़ने की क्षमता ईरान की है, देखिए आप में जितना भी जोश हो, जितना भी जज्बा हो, जब तक आपके पास हथियार नहीं है आप लड़ नहीं सकते। और ये रोज के रोज मिसाइल मारना, ड्रोन मारना, ये बहुत ज्यादा इसमें खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा है ये। मतलब इट्स नॉट, एंड मोस्ट ऑफ दीज ड्रोन्स दैट ईरान इज यूजिंग आर नॉट रीयूजेबल। इट्स नॉट लाइक कि वो ड्रोन जा रहे हैं, वहां पे बम फेंक के वापस आ रहे हैं, फिर से यहाँ पे एमुनेशन लगा के फिर भेजा जा रहा है ना, नॉट एट ऑल। ये वन वे वाले हैं, एक बार गए तो वहीं पे अटैक करके ड्रोन भी खत्म। तो लगातार हजारों ड्रोन भेज कैसे पा रहे हैं रोज के रोज? इनके पास कितने ड्रोन पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री है? या तो दोस्तों चाइना से आ रहा है, और चाइना से कैसे आएगा? हवाई जहाज से चाइना ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से ट्रक में लोड करके ये थ्रू बलोचिस्तान, सिस्तान बलोचिस्तान, ईरान। First story, it's the United States, not Iran, that is the principal threat. I find it hard to say where the Gulf states will come down on this one when the war ends. But I do think there was evidence even before the war started that the Gulf states were moving away from the United States. I think if you look at the Saudis, they had serious doubts. This is before February 28th, as to whether the United States was a reliable ally. As I'm sure you remember, the Saudis formed a strategic partnership with Pakistan. And Pakistan literally said it would put its nuclear umbrella over Saudi Arabia. And now the Turks are trying to help, or trying to join that Saudi-Pakistani alliance.
make it triangular, because the Turks are... कि जो एक तरफ नहीं जाते वो किसी को जाके फादरलैंड नहीं बोलते। फादरलैंड हमारे देश के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक है। हमारे देश के नेता की रीढ़ सीधी नहीं है, उसका प्रमाण है। और उसके दुष्परिणाम ये है कि वहां से आने के बाद 2 दिन में ये युद्ध शुरू हुआ और हम कहीं कुछ नहीं बोल पाए। ईरान सांस्कृतिक रूप से हमारा पुराना साथी है। उसने हमें कई बार कूटनीतिक मदद दी है, जैसे उसने कश्मीर मुद्दे को यूएन में जाने से बचाया है। सीएए की खिलाफत की, आप उसको भूल गए। फिर खुलेआम बोल दें कि हम ईरान के साथ नहीं हैं, कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। फटे में टांग क्यों अड़ा, ये बताइए। फटे में टांग आपको अगर नहीं अड़ाना थी तो आपको जाके स्टैंड विद इजराइल भी नहीं करना था, वो भी नकली मेडल पहन के 6ठी 7वीं के बच्चों की तरह। ये नहीं करना था आपको। एप्स्टीन फाइल्स में नाम नरेंद्र मोदी जी का है, हरदीप पुरी जी का है, उनकी बेटी का है, और कुछ लोगों का है, अनिल अंबानी का है। नरेंद्र मोदी की गलती की सजा इस देश को मिल रही है और नरेंद्र मोदी की फेल्ड कूटनीति के कारण ना आज हमारे पुराने दोस्त हमारे हैं, ना कोई नया हमारा दोस्त बनने को तैयार है। जिन जहाजों के भारत पहुंचने की खुशी मना रहा है मीडिया का कुछ हिस्सा, अच्छी बात है कि आप नहीं मना रहे, उन जहाजों को हमने चीनी करेंसी में पैसा देके बुलवाया है, जबकि ईरान हमसे रुपये में बात करता था, डिस्काउंटेड ऑयल देता था, फ्री इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट देता था और क्रेडिट देता था। ईरान का पैसा हमारे देश के यूको बैंक में है। ये सब भूल गए हम हमारे सैकड़ों। In the first couple of days after the attack, it seemed like India had picked a side. And then there's that picture of Foreign Minister. We should have condoled the death of Khamenei without accusing the United States, without even mentioning the United States, to recognize the fact that a head of state, contrary to norms of international law, has been politically assassinated. You criticized the US attack on the Iranian warship. They could have waited for the ship to sail back near the coast of Iran coast or Oman coast. The theater of war. In the theater of war, they could have sunk it. At what level does this, from a supply chain risk, become a national security issue for us vis-a-vis our LNG imports? Can we see potentially Indian Navy boats with American boats opening up and providing security to vessels? Absolutely not. Strait of Hormuz? Absolutely not. United States will never take the risk of sending in their navy to open up the Straits of Hormuz, because they will lose their naval vessels. Deep water channel in the Strait of Hormuz is in the Iranian territorial waters, and they don't need long-range missiles or even short-range missiles, torpedoes and other things. They can sink anything. LNG business is a problem because we are highly dependent on Qatar for LNG, and they have stopped producing LNG. What the Americans and Israel have done is to deeply hurt our interests in the Gulf. 1 crore people almost in the region. And what 40-45% of our energy comes from here, about 40% of our remittances come from there. Who can replace this? कर भी रहा हो पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान को तो डर ये है कि ईरान निपटा तो हमारा नंबर आएगा। यही बोला भी था उसने। तो हाँ वो बोल ही रहा बासित, जो बोला है अब्दुल बासित, उसका मतलब यही है कि हमारा नंबर आने वाला है। और पाकिस्तान पर कौन भरोसा करेगा? ईरान भरोसा कर लेगा कि अमेरिका भरोसा कर लेगा? तो इसलिए आप देखिए किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है। यहाँ राहुल गांधी बोलते हैं, पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान में कोई बोलता है, कोई खबर उठती है, कांग्रेस पार्टी उसको उठाती है। कह रहे हैं सर कि आज हमने अपनी, जिसको राहुल गांधी ने कहा फील्ड इज अ फॉरेन पॉलिसी इज अ जोक, तो वो कह रहे हैं कि आज आपने अपने आप को दुनिया में लाइट वेट बना लिया। क्या बलूचिस्तान में जो एक्टिविटी बढ़ी है, क्या पाकिस्तान और ईरान दोनों साइड जो परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं, उसके पीछे इजराइल है बलूचिस्तान में? जो बोलते हैं ना, तुर्क का इक्का सुना आपने? ये इजराइल का तुर्क का इक्का है, बलूचिस्तान। और दूसरी, मैं अब देखिए, मुझे आजकल हिंदी मुहावरों में बहुत शौक चढ़ा है, एक तीर से 2 शिकार करना। ये जग जाहिर है, पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है। अगर ईरान को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और वहां एक प्रो इजराइल, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को लेके आ गए, तो अगला टारगेट पाकिस्तान है। 100% इजराइल भी जानता है, ईरान भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है और हिंदुस्तान भी जानता है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। तो ये इंडिया इजराइल जो अलायंस भी हो रहा है, ये भी अरे सुने ना, अभी मिश्रा जी बलूचिस्तान के बारे में सुने। हाँ, पहले नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। ये जो हो रहा है, अब हिंदुस्तान ने अप्रोच किया है इजराइल को कि भाई BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत एक
आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रही है, उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना है। और बलोच जो हैं ये सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। 80% पाकिस्तान के इलाके में आते हैं बलूचिस्तान में और 20% बॉर्डर के उस पार ईरान में है, जिस प्रोविंस को सिस बलूचिस्तान बोला जाता है, सिस्तान, उसमें रहते हैं। ईरान पूरा है शिया और ये है सुन्नी। तो अगर, और ये BLA के जितने भी वो उनका बयान आ चुके हैं कि हम, अगर इजराइल हमें मदद करता है तो हम इजराइल को मुल्क बनते ही एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्निशन देंगे और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। उनको छोड़ दिए, मुल्क तो कभी बनेगा नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, बनेगा ये पक्का है, कब बनेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जब तक वो मुल्क नहीं भी बन जाए, अगर BLA में एक पैठ बना लेता है इजराइल, वो ईरान पे नजर रख सकता है, पूरे ईरान के ऊपर, वहां अपने ये बलोच एजेंट्स तैयार करके हर एक ईरान के इलाके में भेज सकता है और यहीं से अपने एजेंट ला के पूरे पाकिस्तान के इलाके में भेज सकता है और पूरे पाकिस्तान पर नजर रख सकता है। और जब युद्ध होगा तो ऑल दीज पीपल कैन बी एक्टिवेटेड विच कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर मिलिट्री अटैक। और ये एक तुर्क का इक्का है इस वक्त जो इजराइल के हाथ में है और जिसको बड़ी केयरफुली और बड़ी माहिरता से खेल रहा है और जिसमें हिंदुस्तान उसका पूरा साथ दे रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड मुस्लिम ममालिक उम्मा का हिस्सा अफगानिस्तान भी इन दोनों मुल्कों का इसमें साथ दे रहा है। तो यानी आप ये कह रहे हो कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं एंटी पाकिस्तान, वो समहाउ कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला, दे आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस, दे आर प्रोवाइडिंग वेपन्स। इंडिया इज लार्जली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू BLA, इवन टू TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिब पाकिस्तान। इन दोनों जो इदारे हैं आपका BLA और TTP, इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको ज़मीन अफगानिस्तान दे रहा है, अपने मुल्क से उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है, पैसा हिंदुस्तान दे रहा है और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। और ये वहाँ सिचुएशन है और जो दखलंदाजी है इजराइल की, जो उसका इंटरेस्ट है, वो लगातार इज ऑन द राइज एंड सो इज़ इंडियाज़ एंड सो इज़ अफगानिस्तान। तो यहाँ इन तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और इन तीनों का टारगेट लार्जली पाकिस्तान है, कुछ हद तक ईरान है। इजराइल को पाकिस्तान से क्या दिक्कत है? न्यूक्लियर वेपन्स है, मुस्लिम मुल्क है, सऊदी अरेबिया से पैक्ट करके बैठा हुआ है और अभी तक आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। Let's talk about the talks. The US president seemed to blink first yesterday over his threat to pound Iran's power plants as he insisted there were very good discussions on ending the war, but hostilities continued across Israel, Tehran, Beirut and Saudi Arabia overnight. The Times has been told that Steve Witkoff, Trump's Middle East envoy, has travelled to Pakistan, which has offered to host in-person. आपने तो खुद पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए बैठे हैं, पानी रोके बैठे हैं। आप कैसे समझे, आप उनको कैसे समझाएंगे? तो आप तो हर तरीके से, आपने सब तरीके से सक्षम होते हुए भी सारी क्वालिटीज थी इंडिया के पास इस युद्ध की मध्यस्थता करने की। पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता, क्योंकि हॉर्मुज के जो बंद होने के बाद से जो एक तराई मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान, जिसकी की अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं वहाँ, जहाँ की डेमोक्रेसी भी नाम के लिए बची हुई है, वहाँ पे जहाँ सेना का शासन चल रहा है, वहाँ की जो सरकार है वो भी लेजिटिमेट नहीं है, जबरदस्ती थोपी हुई सरकार वहाँ बैठी है। वहाँ पे उस देश का और आर्मी पर्सनल वो सरकार का मुखिया बना हुआ है ईरान, ट्रम्प उसको 2-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच करा। और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं, उनकी हर कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें कि वो उनकी इंसल्ट ना करते हो मोदी जी की। लेकिन मोदी जी जो है मीनू जी, आज लेकिन लोगों को क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप लोग मिसलीड कर रहे हैं, आप लोगों का एक एजेंडा है। लेकिन क्या एक बेसिक सवाल आज ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जो इस युद्ध को रुकवाने का था वो खो दिया? मोदी जी कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर जो उनकी मूर्खतापूर्ण डिप्लोमेसी जो उन्होंने की, उसके चलते आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। जी मीनू जी, देखिए, इसमें सबसे बड़ा सही स्टैंड वो होता
इक्वी डिस्टेंस, दोनों से बराबर दूर। ना हम ईरान के पक्ष में, ना हम इजराइल के पक्ष में हैं, हम युद्ध के विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हम बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाए। लेकिन मोदी जी तो तब बोलते हैं जब उन्होंने इसमें खुद विश्वास रखा हो। ऑपरेशन सिंदूर में आपने पहुंच गए वहां और मुंह की खा के वापस आए वहां से। आपने कहां वो रखा कि हम बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं? आपने सारा व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ तो बिल्कुल मतलब किसी को अगर जो अंधभक्त है मोदी जी के, उनको अगर किसी को गाली देनी होती है तो वो ये गाली दी जाती है, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब पाकिस्तान का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तो हकदारी छोड़ बैठे हैं, क्योंकि आप न केवल एक मुस्लिम देश के, कई आप फलस्तीन के मामले में आप खुल के साथ नहीं आते हैं। आप हाँ जरूर अरब देशों के साथ जरूर आप गलभैया करते हैं, गले पड़ते हैं उनके सुल्तानों के, शेखों के साथ। तो आपको जो ये देश वो देश है नीलू जी, जिस वक्त इस देश के पास खाने के लिए नहीं था, ढंग से खाने के लिए नहीं था। जो एक किसी की दया रहमो करम पे अमेरिका से अनाज आ जाता था, उस गेहूं के ऊपर देश जिंदा था। उसके बावजूद भी रीढ़ की हड्डी रखता था, सीधी रखता था, गलत को गलत कहने का साहस रखता था, सही को सही कहने का साहस रखता था। तो ये चीजें कोरियन वॉर में नेहरू की क्या भूमिका रही, हिस्ट्री के पन्ने पलट के देखिए। उस टाइम 54 से 58 तक की बात है ये, 1954 से। और आज क्या है? आज तो हम सब तरीके से हम कहा जाता है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। कुछ से भी है हमारी दुनिया में। केवल गले पड़ना, नेताओं को गले पढ़ के बताना इज नॉट योर से। मैं तो शुरू से देख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए, पाकिस्तान में भी शिया आबादी है, पाकिस्तान शिया आबादी है और पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर ईरान से लगता है। आप देखेंगे कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई। पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। आप अब यहाँ पे बात आती है कि किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सफल, किसकी विदेश नीति ज्यादा सफल, किसके नेता ज्यादा सफल। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहाँ पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाते खड़ा कर दिया, क्योंकि नहीं, वो पाकिस्तान है। आज दर्शकों को हमें याद दिलाना चाहिए, अभी 2 दिन पहले की खबर थी ना कि एक चाइना के पास 5th जनरेशन जेट्स हैं, पाकिस्तान खरीद के बैठा हुआ है। हम कहाँ हैं सर? हम कहाँ हैं मैं बता देता हूँ, आंकड़े साफ बोलते हैं। आपकी 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ सैंक्शन हुई जी, और आपके पास आज के दिन 28 या 29 स्क्वाड्रन पे आ गए। सब मिग 21 गए, 23 गए, 27 गए, पुराने जहाज सब आउट ऑफ सर्विस हो गए। पाकिस्तान की कितने स्क्वाड्रन है? 25। आप 3.5 फ्रंट वॉर में हूं, चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम, और अब ये नया नवेला ये बांग्लादेश। तो आपको डील करना है साहब। चाइना की एयरफोर्स 50 स्क्वाड्रन, पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 स्क्वाड्रन, 3-4 स्क्वाड्रन इन गधों के, ठीक है। और आप अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ निरंतर डाउन करे जा रहे हैं। हमको सचेत होना पड़ेगा कि हम किस युग में जी रहे हैं। लड़ाई है चारों तरफ। आप पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध हो जाए तो बिल्कुल फिक्र ना करें आप, बिल्कुल मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए आपको। आप करना क्या चाहते हैं साहब? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी, चीन तो है ही आगे, पाकिस्तान भी लीड ले ले। कैन यू अफोर्ड इट? के साहब आपको Su-57 रूस ने ऑफर किया है जी, ठीक है साहब। नहीं, वो F-35 के बराबरी का है। आपको अमेरिका से लड़ना है? आपको तो चीन से लड़ना है ना, पाकिस्तान से लड़ना है। उसके लिए वो जेट बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे डर था अमेरिका नाराज हो जाएगा। अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम अपना बचाव नहीं करें पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से। दैट इज व्हाट अनॉयज अ ओल्ड सोल्जर। यही सवाल सीधा आपके पास सुरेंद्र जी लिए चलती हूँ। अंजना जी, देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। एक बड़ा पुराना हमारे एक दोस्त शायर हैं मनीष शुक्ला, उन्होंने एक शेर लिखा था। कहते हैं, मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो उसकी शिकस्त की तरफ जा रही है, ये अपने आप में सच है। लेकिन इसका भी स्वागत होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को यह रोल क्यों मिला होगा? नाम तो तुर्की और इजिप्ट का भी आया। इसके पीछे एक दलील यह दी जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वह मंच मिले, इसलिए मुमकिन है
वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई होगी। ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं, तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसराइल तुर्की को पसंद नहीं करता। वह जिस सुन्नी एक्सिस की बात करता है उसमें तुर्की भी आता है। अमेरिका भी तुर्की को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रंप ने गजा पीस प्लान में तुर्की को रखना चाहा तो इसराइल ने ऐतराज किया, मगर इस बार अमेरिका ने यह मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया है। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में है। वो तुर्की को अब डंप कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बातचीत में ले आया है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान से बात करने के फैसले में सऊदी अरब ने कोई भूमिका निभाई होगी। आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है, उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। President Trump just reposted moments ago, as we were talking on the fiscal situation, Shahbaz Sharif, a tweet. Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the war in the Middle East in the interest of peace and stability in the region and beyond. Subject to the concurrence by the United States and Iran, Pakistan stands ready and honored to be the host to facilitate meaningful and conclusive talks for a comprehensive settlement of the ongoing conflict. And the President of the United States, Commander-in-Chief of the Armed Forces, reposted that. I think, folks, we ought to get that up. Raja, White House is saying that you're not mediating, but then you're saying you're mediating. Who are you mediating on behalf of? Did Iran tell you to mediate? When did United States said that? They didn't say it. Fact of the matter is, only 5 minutes ago, I was on a very important call to someone who knows everything, whatever's going on. And they are saying that Pakistan is playing a pivotal role in bringing peace into the region once more. And right now I'm saying, I'm not going to tell you the names, but tomorrow morning, you will be seeing some faces in Pakistan that are, of course, going to be here to have the talks with the Iranians. So you're saying that an Iranian delegation is coming to Pakistan? They will be coming. I can't give you the time, the exact time, what time they will be coming. Maybe they are coming tomorrow, maybe they are coming day after tomorrow, but they are coming. And who will they be mediating with? They will be mediating with Steve Witkoff. Steve Witkoff is going to be sure, but there are a couple of big names as well, which are not. So you're saying Steve Witkoff and Jared Kushner are coming to Pakistan? Yes, they will be. Steve Witkoff is for sure that he will be coming to Pakistan, but I'm not going to give you any other name. Who's going to be? Maybe it's Vice President. Vice President might be coming to Pakistan as well. Well, the US Vice President is coming to Pakistan to mediate? Might be. I'm saying might be. Still, they are not confirming it. And who will be coming from the Iranian side? Because who will be coming from the Iranian side? It is not confirmed, but yes, the foreign minister of Iran, he will be coming. It's a tricky situation Pakistan is in, especially when it comes to, track record of US. They have been, of course, getting into dialogue, and then right at the end, they have been bombarding Iran once more. But this time around, it's a different chapter of diplomacy. It's not the conventional diplomacy we are talking about. It's the military diplomacy, or rather I should say that it is more of a crypto diplomacy which is playing the role this time around. Reason being, Pakistan's crypto guru, Bilal bin Saqib, he happens to be a very good friend, a long-term friend of Steve Witkoff's son. He has played the role, and Steve Witkoff is playing the role. According to reports, countries like Egypt, Turkey and even Pakistan are helping diffuse the tension between America and Iran. In fact, it seems that Pakistan is the new go-to as Trump's conflict and tension with Iran escalates. According to these reports, Egypt, Turkey and Pakistan have had multiple rounds of talks with Witkoff, who is the US. I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue between the United States and Iran. I commend Prime Minister Shahbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries.
Pakistan's relationship with the relevant parties and its standing as a credible voice in the Muslim world place it in a strong position to help create the conditions for meaningful negotiations.